हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आ रहे हैं लेसन नंबर फर्स्ट। आज से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की। स्टूडेंट्स, अगर हम इस लेसन की डिस्कशन आपसे करें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है केमिस्ट्री का बेसिक समझने के लिए, केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस समझने के लिए, केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझने के लिए, मैटर की क्लासिफिकेशन समझने के लिए, और जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उनके डिराइव्ड सिस्टम्स और उनके जो भी यूनिट्स होती है उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उन सभी के बारे में, एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में, एंड जो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी थी उसको भी हम यहाँ स्टार्टिंग से समझेंगे। और स्टूडेंट्स, जो बेसिक चीज होती है फॉर न्यूमेरिकल पर्पज के लिए, तो बेसिक फंडामेंटल्स जो यहाँ पर टॉपिक्स आएंगे लाइक एज एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास एंड एवरेज एटॉमिक मास, molecular mass, gram molecular mass, formula mass, and all these concepts be studied about mole concept. It is a vast and very important topics for competition purpose. So that students, this topic includes in this category mole concept. Okay, and according to this system, next topics includes are following. First one is percentage composition and empirical formula and molecular formula determinations and stoichiometry and limiting reagent, and last final topics attached with the 12th class concentration in solution. So that guys, very important lesson for competition purpose and basics for 11th class. So that students, we starts outlines of syllabus. First of all, outline of syllabus. Today students, we starts in this topic introduction and development of chemistry. First topic is introduction and development of chemistry. Now second topic is the importance of chemistry. What is the importance of chemistry in every fields? Students, third topic is the matter and its classification. What is matter and what is classified? Physical properties and its measurements. Students, this topic is related mostly physics, but we includes these topics in chemistry for numerical purpose. Students, next topic, precision and accuracy. It is a practical part which denotes about numericals values nearest to each other or far away to each other. Student, next topic, scientific notation and significant figure. Students, this is a very important topic. This topic is related to physics and chemistry. And significant figures, its multiplication, divisions, subtractions and additions, all criteria are includes in significant figure. Students, now next topic we take law of chemical combination. This is a very important and interesting topics for numerical purpose. Now next students, Dalton's atomic theory. It is a basic part of atoms, and this theory is a important features, denotes about atoms. Students, next topic includes like atomic mass, average atomic mass, molecular mass, formula mass, and best important topics, mole concept. It is a very interesting and very important topics for numerical. Now next, percentage composition, empirical formula and molecular formula, stoichiometry and limiting reagents, concentrations in solution. So that write down students first outline of syllabus. Write down students outline of syllabus. Okay students, very important. Then we starts introduction and development of chemistry. Introduction and development of chemistry. Okay students, okay guys, so that we start introduction and outline of chemistry. What is chemistry? What is chemistry? First question arises,
in our mind what is chemistry, and who is the father of chemistry, and who is the father of chemistry. It is a very interesting part, students. Chemistry, in short ways, chemicals plus history. It means it is the science which deals with the history of chemistry, history of chemicals. Chemicals means atoms and molecules, and studied about its transformations. Students, we know that atoms and molecules are matter. Atoms and molecules are matter, so that we called, students, study of matters like as its properties, its structures includes in chemistry. Students, chemistry word is taken from Greek word chemia. Chemistry word is taken from chemia, and it means chemia means black. Chemia means black. It means soils of Egyptians peoples is be present in black in color. Therefore, chemistry shows about Egyptian art. तो बच्चों, केमिस्ट्री एक्चुअल में होती क्या है? केमिस्ट्री एक्चुअल में अगर हम देखें, द हिस्ट्री ऑफ केमिकल्स है, और केमिकल्स का मीन्स क्या होता है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होता है। तो इस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और इसके ट्रांसफॉर्मेशन की जो स्टडी होती है उसको अपन केमिस्ट्री कहते हैं। स्टूडेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मैटर होता है, और इस मैटर की स्टडी किस फॉर्म में? इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी स्ट्रक्चर्स, इनकी फॉर्म में जो हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, आप उसको किस नेम से कॉल करेंगे? केमिस्ट्री के नेम से कॉल करेंगे। जो ये केमिस्ट्री वर्ड है, ये कहाँ से टेकन किया गया है? केमिस्ट्री वर्ड इज टेकन फ्रॉम कीमिया, ग्रीक वर्ड। कीमिया कौन सा वर्ड है स्टूडेंट्स? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। और इसका मीन्स क्या होता है? ब्लैक। जो इजिप्टियंस पीपुल्स होते थे, उनकी जो सॉइल्स होती थी, उसका कलर भी क्या होता था? ब्लैक होता था। इसलिए केमिस्ट्री को हम इजिप्टियन आर्ट के नेम से भी कॉल करते हैं। तो ये इजिप्टियन आर्ट भी होती है। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो केमिस्ट्री को अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, रोल्ड हॉफमैन के अकॉर्डिंग, तो इट इज द साइंस विच इंक्लूड स्टडीड अबाउट एटम्स and its transformation, molecules and its transformation. Okay students, founder of chemistry is also called as founder of chemistry. You know very well students, name of this scientist is very important because it is a founder, it is a founder of chemistry, Antony Lavoisier. Okay students, it is an introduction about chemistry. So they write down students, first topic,
introduction of chemistry. Introduction of chemistry. And write down in this, students, chemistry. Okay students, write down first topic, introduction about chemistry, and write down in this arrow wise, chemistry is the branch of science. Chemistry is the branch of science which deals with the study of fundamental constituents, the study of fundamental constituents, atoms and molecules, atoms and molecules and their transformation, atoms and molecules and their transformation. Okay student, write down in next line, it also deals with the study of the it also deals with the study of the composition, structure and properties of matter. It also deals with the study of the compounds, structure and properties of matter. नेक्स्ट लाइन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन से लिखना, अकॉर्डिंग टू रोल्ड हॉफमैन, अकॉर्डिंग टू रोल्ड हॉफमैन, chemistry is the science, chemistry is the science of molecules, chemistry is the science of molecules and their transformation. In next line students, it is the science not so much of the 100 elements. It is the science not so much of the 100 elements, but of the infinite variety of molecules that may be built from them, Write down in next line, the word chemistry is derived from Greek word chemia, CHEMIA, which means black. The old name of Egyptian soil was chemia due to the black color, due to its black color. In next line students, probably the word chemistry was used for the Egyptian art. Students, write down in next line, the founder of chemistry, also known as Antoine Lavoisier. Okay students, it is a basic part of chemistry and introductions about chemistry. Now students, we studied about its development of chemistry. बच्चों, केमिस्ट्री का डेवलपमेंट एंशिएंट टाइम से चल रहा है। इसकी अगर हम देखें हिस्ट्री डेवलपमेंट देखें तो एक साइंटिस्ट थे आचार्य प्रफुल्ल। उन्होंने एंशिएंट टाइम में द
केमिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र के नाम से जाना, रसोशास्त्र के नाम से जाना, ऐसे डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इन्होंने यूज की थी। इसके बाद में अदर साइंटिस्ट आते रहे और ऐसे ऐसे बहुत सारे नॉवेल्स थे, लाइक एज चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। इसमें केमिस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। महर्षि कणाद है, उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो ये क्या है, आज की नहीं है, मॉडर्न केमिस्ट्री नहीं है, ये एंशिएंट टाइम से केमिस्ट्री का डेवलपमेंट स्टार्ट है। पहले इसको अलग अलग नेम से कॉल करते थे और अलग अलग एरियाज में इसको अलग अलग नेम से कॉल किया गया है। तो स्टूडेंट्स इसके डेवलपमेंट के बारे में आप थोड़ा बहुत लिख लीजिए। चलिए फर्स्ट एरो में लिखना, एक्सपेंसिव डिस्क्रिप्शन of this contribution is given in history of Hindu chemistry written by आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, आचार्य चंद्र रॉय। तो स्टूडेंट्स इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। तो इन्होंने हिंदू केमिस्ट्री की हिस्ट्री हमको बताई थी। तो ये एक एंशिएंट टाइम्स में वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे। इन नेक्स्ट लाइन स्टूडेंट्स, इन एंशिएंट इंडिया केमिस्ट्री वॉज कॉल्ड रसायन शास्त्र। एंशिएंट इंडिया में हम रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री को किस नाम से कॉल करते हैं, रसायन शास्त्र, रासतंत्र दो नाम से कॉल करेंगे। एक तो है रसायन शास्त्र, एक रसायन शास्त्र, एक रास शास्त्र। रास शास्त्र के नाम से कॉल करते हैं, रास शास्त्र। ठीक है बच्चों, तो ये या रास तंत्र बोल दो, रास शास्त्र की जगह पर क्या बोल दो, रास तंत्र बोल दो, रास तंत्र। इन दोनों नाम से एंशिएंट इंडिया में हम इनको कॉल करते थे। केमिस्ट्री वाज आल्सो कॉल्ड एज रसायन शास्त्र एंड रास तंत्र। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन में लिखना बच्चों, इन एंशिएंट इंडिया केमिस्ट्री वॉज कॉल्ड रसायन शास्त्र एंड रासतंत्र। रासक्रिया और रास विद्या, तो दो नेम और है, रासक्रिया और रास वैद्य। इन फोर नेम से इन एंशिएंट इंडिया में हम इसको बच्चों कॉल करते थे। इन एंशिएंट इंडिया में हम इनको कॉल करते थे। नेक्स्ट लाइन में लिखना स्टूडेंट्स इसकी हिस्ट्री के बारे में, ए वास्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एंड मटेरियल, ए वास्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एंड मटेरियल described in the ancient Vedic literatures, can be shown to agree with modern scientific findings. Can be shown to agree with modern scientific findings. सुश्रुत संहिता लिखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, सुश्रुत संहिता एक्सप्लेन्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कलीज। सुश्रुत संहिता एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कलीज। बच्चों सुश्रुत संहिता में किसका एक्सप्लेनेशन दिया है, एल्कलीज का। सुश्रुत संहिता में एक्सप्लेनेशन दिया है एल्कलीज का। द चरक संहिता, जिस तरीके से सुश्रुत संहिता है
वैसे ही बच्चों चरक संहिता है। तो बच्चों नेक्स्ट लाइन से लिखना, चरक संहिता, द चरक संहिता मेंशंस, द चरक संहिता मेंशंस एंशियंट इंडियंस who know how to prepare sulfuric acid, nitric acid and oxides of copper, tin and zinc, the sulfates of copper, zinc and iron and the carbonates of lead and iron। तो बच्चों आपको इसमें केवल 3 साइंटिस्ट के नेम याद रखने हैं। फर्स्ट आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, जिन्होंने क्या लिखा, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। ठीक। सेकंड साइंटिस्ट आपको याद रखना है, सेकंड जो होली बुक्स है उसका नाम याद रखना है सुश्रुत संहिता, और सुश्रुत संहिता में हमको किसकी हिस्ट्री बताई है, एल्कलीज की हिस्ट्री बताई है। और थर्ड नाम आपको याद रखना है चरक संहिता। चरक संहिता में हमको किस किस के फॉर्मेशन के बारे में स्टडी बताई है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन है, नाइट्रोजन है, कॉपर के सल्फेट की स्टडी है। इनके बारे में हमको 3 पॉइंट्स आपको इस डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री में हमको याद रखना होगा। वेरी सिंपल क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आपको ओनली 3 नेम्स याद रख सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है आप सबके लिए। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, सेकंड चरक संहिता और थर्ड सुश्रुत संहिता। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर सभी को डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। नाउ स्टूडेंट्स ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, स्टूडेंट्स केमिस्ट्री इंक्लूड्स मेनी ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। branches of chemistry, many branches. First one branch is B, inorganic chemistry. Second one organic chemistry. Third one physical chemistry. ये तो आप 11th क्लास में स्टडी करेंगे ही सही स्टूडेंट्स। इनके अलावा और जो होती है केमिस्ट्री, देखिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एग्रो केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड एग्रो केमिस्ट्री। नेक्स्ट होती है बच्चों एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। नेक्स्ट होती है स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्या है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नेक्स्ट स्टूडेंट्स फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो होती है बायोकेमिस्ट्री, जो कि और मेडिकल केमिस्ट्री बोल सकते हैं इनको हम, मेडिकल केमिस्ट्री। दीज आर डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स आप इन सभी ब्रांचेज में आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं, और मास्टर डिग्री करके डिफरेंट सेक्टर्स में आप जॉब कर सकते हैं। तो देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? Except carbon, studies about other elements in different its forms, its like its compounds, different compounds, acid, base and salts. तो स्टूडेंट एक्सेप्ट कार्बन studied about
compounds of different atoms, compounds of different atom। यहां हम स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह से करेंगे, कार्बन को छोड़कर बाकी सभी जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो कंपाउंड्स बनते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, उनकी स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये भी साइंस की ब्रांच है जिसमें हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव की स्टडी की जाती है। तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। सभी वैसे तो साइंस की ब्रांच है, यानी कि हम शॉर्ट आंसर में कहा है स्टडीड अबाउट हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। क्लियर स्टूडेंट्स? थर्ड ब्रांच होती है फिजिकल। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? फिजिकल केमिस्ट्री का मीन्स होता है इफेक्ट ऑफ फिजिकल बैरियर्स और फिजिकल कंपोनेंट्स टू द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन पर जो फिजिकल कंपोनेंट्स होता है उसके इफेक्ट की जो स्टडी होती है उसको अपन फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इफेक्ट ऑफ फिजिकल एजेंट्स on the chemical reaction are called as physical chemistry. Students, what is nuclear chemistry? Students, nuclear chemistry means होता है न्यूक्लियस के बेस पर आप एटम बम, हाइड्रोजन बम, मॉलिक्यूलर बम, अगर आप इस तरह की स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि the study about explosive substance, तो आप उसको किस नेम से कॉल करोगे स्टूडेंट्स? न्यूक्लियर केमिस्ट्री के नेम से कॉल करोगे। नाउ स्टूडेंट्स, एग्रोकेमिस्ट्री। व्हाट इज एग्रोकेमिस्ट्री? स्टूडेंट्स, स्टडीड अबाउट एग्रीकल्चर फील्ड्स, एग्रीकल्चर सब्सटेंसेज, द स्टडी अबाउट एग्रीकल्चर सब्सटेंसेज। स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर सब्सटेंसेज का मीन्स क्या होता है? व्हाट इज सोइल, हाउ इट इज पीएच चेंजेज, मिल्क, एंड इट इज यूज इन डेयरी टेक्नोलॉजी एंड डिफरेंट क्रॉप्स, how it is growth, fertilizers, pesticides are includes in this chemistry. It is called agrochemistry. Students, environmental chemistry, it means how chemicals polluted environment, studied about pollution and acid rain and fog, smoke and green revolutions. Many environmental factors affected. It means the study of pollution, study of pollution, acid rain and factors affected environment. This is called environmental chemistry. Now students, industrial chemistry. This chemistry is very important for industrial purpose. Formations of many compounds, many chemicals used in different fields. In this study about
इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की हम डिस्कशन करेंगे। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होती है स्टूडेंट्स? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का मीन्स ये होता है स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड इट्स एप्लीकेशन एंड हाउ टू यूज एंड हाउ टू एडमिनिस्ट्रेशन of drugs. It means study about drugs and medicines, studied about drugs and medicines is called pharmaceutical. Now medical chemistry, students, this is very useful for medical students. This is very useful medical students in form of biochemistry, okay. This is useful for medical purpose, okay students. So it is a branch of chemistry in explained with the brief, ओके। नाउ स्टूडेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये टॉपिक बहुत पसंद आया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़